It's like a proper, I'd like to believe, an unapologetic show because very unabashed revelations, marital affairs, whether it is the censor board, whether it is relationships, so on and so forth. And it's a very happy moment for us because the show has been received really well, whether it is the kind of topics that have been coming in, and the fact that the Bhatts actually get to interact with listeners, get to interact with listener queries, actually attend to them, and all of that. So, of course, the show is now airing in 32 cities nationally. And the timing of it is Sunday 9 a.m. to 11 a.m. And on popular demand, the show is now also available on digital media. That is our website, radiomirchi.com. So yes, we're good to go with the press conference right now. But before that, I want... So, Wait. Everybody. so let me tell you how the idea of this show started. This is exactly how it started. We'd gone to meet both of them in his office. We were made to sit in the conference room. It seemed very, we were made to sit. Then the one door opened. That was not the door from where we came in. Another side private door opened. And it was like we went into that room and we met Pooja. So we said, "Acha, theek hai." Then Pooja made us sit somewhere. Then another private door opened and it led to Mahesh Bhatt's cabin. And we went out there. And then for the next 5 minutes, Pooja Bhatt was telling Mahesh Bhatt, her father, where to sit and why he shouldn't be sitting on the sofa that he was sitting on. So I was just observing them and I said, "Yeah, show to ban gaya. Hame tension nahi hai." So then he was looking at me keenly. He said, "What are you observing? Why are you speaking?" I said, "Sir, I have the show in my mind already. It's about the two of you fighting about things that matter to you or don't matter to you, but we need to have this on air." That's why the show started. They've done a fabulous job of it. The good part is that they are willing to be themselves on radio, because radio में बहुत ज़रूरी है कि you are. That's why the show also came from there. The show name came from there, Thought Naturally, which is about them being natural in front of the mic. As far as experiences are concerned, they will tell you how it was. But I must tell you, on the first day, हमने सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बात की. हमने शो के बारे में बिल्कुल बात नहीं की. We spoke about her green hair then, it is red now, and my blue shoes. That's all we discussed. The blue stays the same. That's Yeah. ये दगाबाज ने इन्होंने change कर दिया. Bhatt remains the same. His wit and sense of humor does not change. He's been asking me how the show's been doing, and that I've been a very bad person in not telling him how it's been doing. I think today we're celebrating the fact that this show is doing extremely well in all corners, every part that we've this broadcast. He remains unmanageable as usual and fabulous. You'd like to add something, or you want to take it from here? Whichever way. अभी सीटी बजाने के बाद में बचा क्या है? I think they say the body does not lie. और हमारे जिस्म से आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि हमें कितना मजा आ रहा है ये शो करते वक्त. मगर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कह दूं कि जो जब संडे को हम ये प्रोग्राम सुनते हैं हमारे घरों में, तो मैं भी खुद अपनी आवाज़ सुन के, पूजा की आवाज़ सुन के, ओवरऑल इस शो का जो एक इम्पैक्ट होता है उसको सुन के बड़ा प्रभावित होता हूँ. उसके लिए जिम्मेदार वो हमारे जो यहाँ के जो टेक्नीशियंस हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमें टॉर्चर करते हैं एक्चुअली, जो 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 हमारे सारे ऐप को जो है दबा देते हैं और हमें कुछ संभाल के आपके बीच में लाते हैं. तो आई थिंक इट्स वन हेल ऑफ एक्सपीरियंस. और जैसे मैं कह रहा था कि एक जुमला मुझे याद आ गया कि मैन इज मेमोरी एंड मेमोरी इज साउंड. इंसान एक याद है और याद एक आवाज़ है. जब भी आप अपने किसी करीब के रिश्तेदार के बारे में सोचते हैं तो साथ में आवाज़ जहन में, दिल में गूंजती है. इसी वक्त कर लीजिए एक्सपेरिमेंट. अपनी माँ की आवाज़ और चेहरा एक साथ में आता है, लेकिन बिना उस आवाज़ के याद संभव ही नहीं है. तो कहीं पर इसकी जो बुनियाद थी, the journey of this began from the memory of listening to radio in the early 50s when we were growing up.
अमीन सयानी साहब की आवाज़ थी, और कहीं पर वो प्यास तभी जगी थी कि एक दिन ऐसा आए कि हम जाके मुल्क से बात करें और वो देखो, कहते हैं सबने बड़ा सोच समझ के देखो कि पूरे हो जाते हैं. एंड देन Shal came and we got this brilliant opportunity to address, I mean to not address politicians, address, we don't address, connect with the nation. And कहीं पर वो एक नौजवान लड़का लड़की या कोई ऐसा इंसान जिसने हमारी आवाज़ सुनी नहीं, जब उसके जहन में हम एक जगह बनाएंगे लगेगा कुछ हासिल किया है. And that itself is a great enough motivation. And बातचीत करते करते सवाल जब हमको पूछे जाते हैं तो हमको उस वक्त अंदाज़ा होता ही नहीं कि हमारे अंदर ये सब कुछ कहीं पर किसी तहखाने में छुपा हुआ है. एक डिटेल निकल आती है और बात करते करते पूजा अचानक देखती है, कहती क्या ये तो बताया नहीं आपने हमको. तो अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी मेरे ऐसे बहुत बड़ी एक इमारत है जिसके अंदर बहुत सारे कमरे हैं. So I think what this show is doing to me is unlocking a lot of memory words, जहाँ पर बहुत सारा कुछ खजाना जो है मेरा छुपा हुआ है, उससे रूबरू कराया है शो ने. So thank you very much for this opportunity and I'm happy that possible नहीं है कि जिसमें हमको आना हो उससे उसमें सुनने वालों को लुत्फ लेना हो. It is not possible. जब भी हमने फिल्में बनाई जिसको बनाते हुए हमको मजा आया तो ऑडियंस को भी मजा आया है. सो दैट इज द एसिड टेस्ट ऑफ एनीथिंग गुड. बट सच्ची बात यह है कि जब विशाल ने कहा कि बाकी शो हिट हो गया तो बड़ा अच्छा लगा. हम तरसते रहते हैं थोड़ी सी तारीफ सुनने के लिए. तो ये हिट लफ्ज जो है ना बहुत बहुत मुश्किल से हासिल होता है. हमारे नसीब में बरसात हिट की बहुत कम होती है, मगर जब वो बरसात होती तो उसमें भीग जाने का दिल करता है. तो हम यहाँ पर भीगने के लिए आए हैं बस. थैंक यू. It's the first time you all are on radio, and you know, देखा जाए तो for the two of you, you have been a part. I think we are vulnerable when we are not vulnerable. हाँ. Is what I've begun to realize. I think that मुझे पता नहीं ये लगा कि जब इसको आप इंडियाज मोस्ट कंट्रोवर्शियल रेडियो शो कहते हैं तो ऐसी कौन सी कंट्रोवर्शियल बात हमने आपस में की है या आवाम से की है. मगर शायद हमको अपने बारे में हमारा ये अंदाजा है नहीं कि हम जो कहते हैं वो शायद it can be pigeonholed into what is called a controversial slot. मगर नहीं, I don't think कि I ever felt a sense of discomfort के साथ ये. मगर हाँ, मुझे लोगों ने आके कहा कि साहब ये तो बड़ा पार्टनरिंग शो है. हमारे जो पहला जो आपका प्रोग्राम था तो उस पर एक नौजवान डायरेक्टर हैं जो सुनने के बाद में उन्होंने आज कहा कि साहब आप कुछ वक्त से आगे चलते हैं ना. तो ये जो बाप बेटी बैठकर एक मंच पर ऐसे टॉपिक्स पे बात कर रही हैं तो ये तो हिंदुस्तान की तहजीब है उससे कुछ अलग ही है. इस मुल्क में ही तो हमारे पुरखों ने खुल के हर इशू पर बात किया. ये कहीं पर ये हम युद्ध सच्ची बातें घर में नहीं करेंगे, अपने औलाद के साथ नहीं करेंगे, अपने बड़ों के साथ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे. और क्या दूसरों का घर हमसे कुछ ज्यादा अलग है? नहीं. तो आई डोंट थिंक आई गॉट अ सेंस ऑफ doing something which is crossing the Lakshman Rekha. But yes, there was a response that I got from one of the young directors who felt the show was good, but he said, "Thoda waqt se aage." But that's why they say now, it's not necessary that you have to be young to have young thoughts. Yeah. So you can be young and have very पुराने ख्याल. तो आपका ये young director जो है actually काफी old fashioned है. और आप जो supposedly old है काफी actually young है because आप काफी forward है. तो पुराने लोग पुराने ख्याल नहीं. Young people पुराने ख्याल is more the case actually. Youth does not mean that you will be forward. And that's हाँ, तो
young is not connected to the No. physical age. It's not guaranteed that just because you're 20 something you're going to be forward in your mind or your heart. सुन और रहे open rather. हो तुम क्या कह रही हो? तो जरा इंटरव्यू ये दो ना यहाँ तो पर। यंग ख्यालों से मैं इम्प्रेस होती हूँ, यंग शरीर और एज से मैं इम्प्रेस नहीं होती हूँ. It's said na the age is mind over matter. So सोच if you don't mind, अगर doesn't matter. सोच में झुर्रियाँ हो तो क्या करोगे? क्या? सोच में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। हाँ जी। No, so topics have been on extramarital affairs, whether it's been sex, whether it has been the censor board. Like so far, which has been the most interesting topic for you guys? What I didn't expect to be interesting. जैसे for example हमने एक superstitions पे अंधविश्वास पे किया था एक एपिसोड, मुझे लगा था कि पता नहीं क्या बातें करेंगे, but that actually became the most interesting topic for me because वो बातों के दौरान we realized that there was so much there that we had to share and we learned so much. So I think it's a process जहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि actually what's going to happen when we start recording, and it's wonderful because I think that you learn so much about you excavate. हम excavate करते हैं कहीं ना कहीं अपने आप को and we don't come prepared, which is what is good. वरना क्या है कि अंडरवर्ल्ड पे जो था, अंडरवर्ल्ड पे बॉलीवुड का जो रिश्ता है was a very explosive kind of topic क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में लोग अंडरवर्ल्ड का शब्द वर्ड लफ्ज आया था तो सोच स्वर जो है यहाँ से यहाँ आ जाता है और कहने के लिए बड़े बोल्ड है मगर ऐसी क्या बात हो जाती है पता नहीं कोई ऐसे कुछ रूस रह जाती है तो जो हमारे साथ घटा हमने जो झेला हमने जो देखा उसके बारे में हमने जैसे अपनों से आप बात करते हैं क्योंकि जो सुनने वाले हमारे अपने ही हैं वो फिजिकल फॉर्म में वहां पर मौजूद नहीं है मगर वो इंटीमेसी का एहसास हमें महसूस होता है तो उसके उस शो के दौरान मुझे लगा कि कुछ लॉट ऑफ buried truths which were there जिसका हम ज़्यादा जिक्र करते नहीं क्योंकि अवसर ही नहीं आता मगर कुछ सवाल लिसनर पूछता है आपसे क्योंकि उसके अंदर एक जेन्युइन प्यास होती है तो जब एक सच्चा सवाल कोई पूछता है तो फिर वो आपको मजबूर करता है सच्चा जवाब देने के लिए तो तार वो छेड़ते हैं सुनने वाले तार छेड़ते हैं आपके अंदर जैसे मैं कहता हूँ कि जो म्यूजिक होता है वो संतूर में या सरोज में या सितार में नहीं होता वो जो बजाने वाले के अंदर संगीत होता है वो उसके बजाने के ऊपर पूरा निर्भर होता है तो आई थिंक लिसनर प्लेज अस तो ये लिसनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें कहाँ ले जाते हैं हम तो वहां जाने को तैयार हैं जहां आप ले जाएं बशर्ते आप वहां जाने को तैयार हैं तब तो चलते हैं आपके साथ हम ताउमर चलते रहेंगे जहां तक आप ले जाएंगे चलते रहेंगे And besides, I feel कि in this world that we live in, where everybody is so obsessed with perfection, कि even जब भी हम अपना candid side दिखाते हैं, उसे process करके दिखाते हैं, which is the problem I have with the new generation today. Everybody sounds the same, looks the same, is the same. Everybody is very politically correct. Nobody is making any mistakes. So I think that ours is genuinely a show where the attempt is not to gloss over. The attempt is to really answer truthfully, and to answer truthfully means to kind of expose your frailties, which is what we do. और एक बहुत ही अच्छा एक नई फीलिंग जो थी वो ये थी कि अक्सर ये होता है कि जब आप बोलते हैं तो आपको लगता है कि आपको कोई देख रहा है या आपको आपका चेहरा रिकॉर्ड हो रहा है तो यहाँ पर द विजुअल रिकॉर्डर वाज नॉट देयर you were being recorded through your voice was the only tool your only bridge The truth is that I'm sure they will relate to this. The best part about doing radio is you know what कि बाल और मेकअप नहीं करना पड़ता है सीधा जाग जाओ आ जाओ पहुंच जाओ माइक के सामने you don't need to look और केक खाते रहो ये केक बहुत खाती है शुक्र और खुद तो खाती है साथ में शुक्र को भी लेके आती है फिर खाने blame me I am responsible for everybody eating cake everybody I take the responsibility No, but पूजा ये जो सवाल है नेक्स्ट ये खास तौर पे लिसनर्स का पूछ रहे हैं कि लिसनर्स को पूछ रहे हैं कि पूजा भट्ट को इतना गुस्सा क्यों आता है क्या है ना कि अनफॉर्चुनेटली जब एक औरत साफ बोलती है ना तो लोगों को लगता है कि गुस्सा आ रहा है उसको
और जब ये महेश जी जो है बहुत ही मतलब एक टोन में कुछ बोलते दिल से, इतने इंटेंस इंसान है, मगर जब ये औरत बहुत एक तो थोड़ी बहुत खूबसूरत होती है और अपनी सेक्सुअलिटी के साथ कंफर्टेबल है और दिमाग भी क्लियर है और ना क्लियरली बोलती है, गुस्सा क्यों आ रहा है यार आपको? आपको मतलब you want me to be a glamour pose, but you want me to be subservient and say I don't know what I want. I know what I want and I know what I don't want. Most importantly, तो क्या है कि हिंदुस्तान में बहुत अजीब चीज़ है कि आपने औरत को तो देवी बना ही दी है, मगर आप औरत की लक्ष्मी के रूप, सीता के रूप, सावित्री के रूप से बहुत कंफर्टेबल हैं। मगर जब ये काली माँ जाग जाती है उसके अंदर तो आपको बहुत प्रॉब्लम या बहुत तकलीफ होती है। तो मैं तो हूँ काली माँ भी, लक्ष्मी भी, सीता भी, सावित्री भी, सती नहीं बनूंगी, मगर बिल्कुल नहीं बनूंगी। तो नहीं झेल पाएंगे तो ना झेलें, ना सुनना है तो रेडियो बंद कर दें, फॉलो नहीं करना है तो ना फॉलो करें। मगर क्या है कि मैं तो सोचूंगी, मैं तो जीऊंगी, मैं जो हूँ वो रहूंगी। इसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई चॉइस ही नहीं है। दिस इज माई नेचर, जो आपको 40 जीन्स के लिए कहीं ना कहीं सोच करना पड़ेगा। इनकी जागीर में आई है सब कुछ। ये मुझ पे केस करने वाली फॉर गिविंग हर बैग जीन्स। तो क्या है कि एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, चेंज इट टू पूजा भट्ट को गुस्सा क्यों आता है? महेश भट्ट को गुस्सा आता है। आता था, मगर वो लोग बोलते थे महेश भट्ट सच एन इंटेंस मैन। क्या है कि मर्द में आप गुस्से को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मगर औरत में नहीं। So this is the problem patriarchal society है। So you want to see me smile, you don't want to see the fury of a woman's nature. You only want to see the passive side of a woman's I think the nature. listeners have got the answer loud and clear. लेकिन of course moving on to the press conference, we're ready. You're good to go. Any questions if you guys want to pop up? अब इसके बाद अच्छा क्या बोलें? आ जाओ। ये ले जाओ। Thank you. But naturally, the Pooja and Mahesh Bhatt show is a hit. हमें ये हिट शब्द जो है ना सुनने को बहुत कम मिलता है। अगर हम पूरी जिंदगी को रिवाइंड करके देखें तो चंद वो ऐसे लम्हे हैं जहाँ पर हमें इतनी खुशी का एहसास हुआ है कि हमारा कोई काम जो हमने किया हिट हुआ है। तो ये रेडियो में हमारा जो पहला जो एक एडवेंचर रहा है और वो इज़ अ हिट। और इसके दौरान जैसे पूजा ने कहा कि एक नए मीडियम से अपनी आवाम तक पहुंचने का जज्बा तो हमारे अंदर था, मगर साथ साथ कहीं पर हमारे अंदर भी बहुत कुछ खुला है जिसने हमको चौंका दिया है। कुछ ऐसी यादें दफन थी जिससे हम शायद सालों नहीं मिले थे। तो द शो हैज़ बीन अ वेरी वेरी एंगेजिंग शो। और एक अहम बात यह है कि ये शो को जिंदा किया है सुनने वालों ने, क्योंकि जब सुनने वाला दिल से कोई सवाल पूछता है तभी हमारे अंदर से एक जवाब आता है जो जिंदा जवाब होता है। नहीं तो अक्सर थके हुए सवाल होते हैं, सुनने वाला जो है वो सवाल पूछकर सुनता नहीं है, मगर ये एहसास कि जिसने सवाल पूछा है वो हमसे सवाल पूछ के हमारे हर लफ्ज़ को सुन रहा है, महसूस कर रहा है, वो हमें जिम्मेदारी देता है कि हम अपनी दिल की बात ईमानदारी से उन तक पहुंचाएं। तो आई थिंक इट्स बीन वन हेल ऑफ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड जैसे मैंने कहा कि
मैन इज मेमोरी एंड मेमोरी इज साउंड। इंसान एक याद है और याद एक आवाज़ है। कहीं पर हमारे अंदर ये बचपन में ही प्यास जगी थी कि काश वो दिन आए कि अमीन सयानी साहब का हम रेडियो प्रोग्राम सुनते थे, वेना का गीत माला, कि किसी दिन हम भी ऑडियंस से जुड़ेंगे रेडियो के द्वारा। तो सपने जो हमने देखे थे बचपन में वो पूरे हो गए। सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी ऑन रेडियो। या एब्सोल्युटली, आई थिंक उन्होंने कह दिया है, मीडियम बहुत ही लिबरेटिंग है, बहुत ही पावरफुल है। और आई थिंक दैट आपको तो किसी यंग फिल्म मेकर ने एक्यूज़ किया है कि आप कुछ समय के पहले आ गए हैं, मगर हम आपका पेशा ही तो ये है कि वी आर ऑलवेज लिटिल अहेड ऑफ आवर टाइम्स। मगर हाँ, हमारे ऑडियंस से जुड़ने का ये जो मौका हमें मिल रहा है रेडियो मिर्ची के थ्रू, उसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, बिकॉज इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जो आपको मिल रहा है टू काइंड ऑफ मेक मेमोरीज। और ये ज़िंदगी भर मैं इस इनहेरिटेंस को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर पाऊँगी for my own satisfaction and as fuel for myself. So I'm very grateful for this chance. FM अब सुनना कितना पसंद करते हैं आप? मेरी हमेशा यही एक कंप्लेंट रही है कि समटाइम्स बातें कुछ ज़्यादा करते हैं, तो हम तो कोशिश करते हैं कि द म्यूज़िक इज़ ऑल्सो गॉट प्रायोरिटी एंड वी काइंड ऑफ स्पीक टू द पॉइंट। मगर हमें आई थिंक हमारे बायस लोगों ने कहा है कि आपकी आवाज़ हम ज़्यादा सुनना चाहते हैं। तो एज लॉन्ग एज पीपल से व्हाई आर वी नॉट हियरिंग यू इनफ इज़ गुड। मगर आई थिंक कि मैं एक्चुअली रेडियो अभी ज़्यादा सुनती हूँ नाउ दैट आई एम ऑन रेडियो माई सेल्फ, आई हैव टू बी ऑनेस्ट। मैं सुनता नहीं हूँ रेडियो, मगर अब सुनना मैंने शुरू किया है और मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि रेडियो का जो मीडियम है कितना वेरी पावरफुल फैल चुका है, उसका कंटेंट कितना गहरा हो गया है और कितना रूटेड हो गया है। बिकॉज ऐसे कैंडिड बातें आप मतलब दूसरे कोई प्लेटफॉर्म पे कर नहीं सकते हैं। आई डोंट थिंक कि किसी ने हमें एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम दोनों भट्ट साहब और मैं बहुत सारे टॉक शोज में शामिल हुए हैं, बहुत सारे मंच पे गए हैं, मगर इतने एक फ्री व्हीलिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट अनसेंसर्ड टॉक जहाँ पे हमें वो रुकाते नहीं है। अगर गार्बेज बातें हो, अगर ओवरलैप होती है, कभी कभी गले में खराश होती है, मगर इट डजंट प्रिवेंट यू फ्रॉम बीइंग एबल टू स्पीक योर हार्ट एंड माइंड। आई थिंक दैट इन इटसेल्फ बहुत ही एक लिबरेटिंग प्रोसेस है कि बिना मेकअप के, बिना बाल, आपसे मतलब जाके यू जस्ट स्पीक। और आपने मुझे सिखाया था ये कि जब भी आप दिल से बोलेंगे तो लोगों के दिल तक पहुंचेगी, जब आप मुंह से बोलेंगे तो लोगों के कान तक बात पहुंचती है। तो हमारी कोशिश तो यही है कि हम दिल से ही बोलें, चाहे लोग वो स्वीकार करें या ना, या एक्सेप्ट करें या ना, मगर बस दिल की बात आपके सामने डाल रहे हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप एक्सेप्ट करें या ना करें। लोग बोलते हैं कि कैंडिड हो, सच बोलो, मगर सच बोलो फिर उसके बाद में पत्थर फेंकते हैं। तो यार डिसाइड कर लो कि क्या चाहिए आपको, झूठ चाहिए या सच चाहिए। झूठ चाहिए तो हमारा शो ना देखे, बेहतर होगा। बहुत सारे चैनल्स हैं झूठ के लिए, मगर यहाँ पे नहीं मिलने वाला है आपको। तो दिस इज अनवार्निश्ड, दिस इज अनसेंसर्ड, दिस इज स्ट्रेट अप, दिस इज अस विद ऑल आवर फ्लॉज। टेक इट or leave it, simple as that. You're listening to But naturally, the Pooja and Mahesh Bhatt show. Controversial topic शायद लोगों को लगते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में क्या है कि हमारी आदत है कि जो हम जिंदगी जीते हैं उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। हमें सिखाया गया, इसके लिए आधे लोग जो है घर के बाहर बड़े होते हैं। तो जैसे सेक्स को लेके जो टॉपिक है, लोग, मैंने तो यही कहा था कि लोग तो ये बोलेंगे कि एक ही मंच पे एक बेटी और बाप बैठ के सेक्स के बारे में बातें कर रहे हैं। मगर आई थिंक कि अगर ज़्यादा घरों में ये होता तो हमारे देश में ये यू नो देयर वुड नॉट बी सच अ प्रॉब्लम ऑफ सेक्सुअल अब्यूज टू बिगिन विद। लोगों को अपने राइट्स, अपने प्रायोरिटी समझ में आ जाती। सेक्स जो है एक बुरा शब्द समझा नहीं जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं इफ वी डीमोनाइज द टर्म, एंड आई थिंक कि उसे नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आई फील कि इट इज़ बेटर टू allow your children to grow up within your home than outside it, and that is फिर से ओपिनियन हमारा है। आपको ज़िंदगी ऐसी नहीं गुजारनी है। आप रेडियो ऑफ कर सकते हैं, आप ट्विटर पे हमें अनफॉलो कर सकते हैं, मगर हम जो हैं मेरा ये मानना है कि घर से बड़ी कोई पाठशाला है नहीं। मैंने तो अपने बचपन में स्कूल किंडरगार्टन में जाने से पहले अपनी माँ से बहुत कुछ सीख लिया था। तो घर जो है वो आपके अंदर सारी जो अहम सोच जो है खेलता है। और मेरे लिए मुल्क एक घर ही है, और अगर हम एक दूसरे से खुल के बात ना करें तो कहाँ
कहाँ से, कोई चांद से आएगा आदमी, कोई मार से आएगा? तो ये हमने अपने दिल से एक बात कह दी, मगर जैसे मैं पूजा से अक्सर कहता हूँ कि सच को सच करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है। करेक्ट, एक जो सच बोल सकता है, दूसरा जो सच सुन सकता है। सही बात है। हमने सच बोल दिया। आप में अगर सुनने की क्षमता नहीं है तो आप बंद कर दें, और ना ही हम ये सोच आप पे थोप रहे हैं, ये हमारी सोच है, ये मेरी सोच है। अक्सर मेरी सोच इससे नहीं मिलती है, हाँ, ये मुझसे लड़ती है शो के दौरान। हाँ, तो आई थिंक कुछ तो फायदा हुआ कि महेश भट्ट के साथ डिसएग्री करने का, कि हमें एक शो मिला है, क्योंकि वो डिसएग्रीमेंट ही ये शो कहीं ना कहीं बनाती है। इफ वी एग्रीड ऑल द टाइम, आई डोंट थिंक वी वुड हैव अ शो। नहीं, और अब बच्चों को अधिकार है कि वो अपने माँ बाप से मुख्तलिफ राय रखें, सुनने वालों को अधिकार है कि हमारी बात सुनकर उसे डिसएग्री करें। हमने कब मान लिया कि जो हम सोच रहे हैं, कह रहे हैं, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है? हमें तो ऐसी खुशफहमी है नहीं है। हम एक लिमिटेड इंसान हैं जो अपनी लिमिटेड जिंदगी गुजारने के बाद में हम इस कंक्लूजन तक पहुँचे हैं जिसके आधार पे हम अपने सुनने वालों को उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे लिमिटेड परसेप्शंस हों। आई एम completely comfortable agreeing with that, but I am saying it sincerely, and that's all that we can say. It's a truthfully expressed show. एंड ऑल्सो आई फील कि आज के दौर में जब ये हर चीज़ इंजीनियर किया जाता है, एवरी कमेंट, हर किसी की राय कहीं ना कहीं प्रोसेस्ड होती है जब तक लोगों तक पहुंचती है। मतलब लोग प्यार के बगैर मतलब चीखते भी नहीं है आज के दौर में। तो आई थिंक isn't it refreshing to just hear somebody say it the way they feel it, with all their flaws, with all their limitations. So I think that is the हम attempt. अपने घर में भी सांस संभल के लेते हैं, हाँ। कि भैया पता नहीं क्या बोल दिया तो उससे कौन सा जो है बम फूट जाएगा। अपने घर में ही हम इतने खौफजदा हो गए हैं कि इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द टाइम वी आर लिविंग इन। कोई सब सही बात साउंड करना चाहते हैं कि हमने सही बात कही है, दिल की बात जो है बहुत कम हम कहते हैं। आई थिंक दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी स्पीक आवर हार्ट्स, सो लिसन टू अस विद आवर हार्ट, योर हार्ट्स। हो गया? हाँ। इसके बारे में आलिया भट्ट के बारे में बहुत कुछ बोलना चाहेंगे, मगर ये मौका नहीं है। Yes, thank you everybody. थैंक यू सो मच।